جمہوری عمل کا تسلسل، سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخاب کا عمل مکمل، تحریک انصاف ایوان میں اکثریتی جماعت بن گئی۔ ریزلٹ کے مطابق جنرل سیٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے ہیں اور شیخ صاحب نے لیے ہیں 164 ووٹ۔ اسلام آباد کی جنرل نشست پر یوسف رضا گیلانی 169 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب، پی ٹی آئی امیدوار عبدالحفیظ شیخ کو 164 ووٹ ملے۔ خواتین کی نشست پر تحریک انصاف کی فاضیہ ارشد ایوان بالا کی رکن منتخب۔ خیبر پختونخوا سے حکومتی اتحاد کی کامیابی، شبلی فراز، محسن عزیز، لیاقت رکئی اور فیصل سلیم سینیٹر منتخب۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور فلک ناز بھی ایوان بالا کی رکن بن گئی۔ دوست محمد خان اور ہمایوں محمد ٹیکنوکریٹ، جبکہ گردیپ سنگھ اقلیتی نشست پر کامیاب۔ سندھ سے 11 سینیٹرز کے انتخاب کا عمل مکمل، پیپلز پارٹی کی شہری رحمان، سلیم مانڈوی والا، شہادت آوان، جام مہتاب، تاج حیدر سینیٹرز بن گئے۔ این کیو ایم پاکستان کے فیصل سبزواری اور تحریک انصاف کے فیصل واؤجا کامیاب۔ ٹیکنوکریٹ اور خواتین کے نشستوں پر فاروق اشنائک، سیف اللہ ابڑو، پلوشا خان اور خالدہ عتیب کامیاب۔ بلوچستان میں 12 نشستوں پر انتخاب، بلوچستان عوامی پارٹی کی 6 نشستوں پر کامیابی۔ سرفراز مفتی، عبدالغفور حیدری، منظور کاکڑ، عمر فاروق، پرنس احمد، عمر احمد زئی، محمد قاسم اور عبدالقادر جنرل نشستوں پر سینیٹرز منتخب۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کامران مرتضیٰ اور سید احمد ہاشمی ایوان بالا کے رکن بن گئے۔ خواتین کی نشستوں پر سمینہ ممتاز اور نسیمہ احسان سینیٹرز منتخب۔ اقلیتی نشست پر دانش کمار کامیاب۔ اسلام آباد کی جنرل نشست پر ہونے والے سینیٹ الیکشن کے نتیجے نے ہمارے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ دھونس، دھاندلی اور پیسے کے ذریعے الیکشن خریدنے والے لوگ لوٹ مار کے نظام کو بچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک کو مفلوج کرنے والے نظام کو تبدیل کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کو آڈیٹر جنرل کے ادارے میں اصلاحات کے عمل پر بریفنگ۔ پیشہ ورانہ مہارت اور بہتر گورننس کے لیے ادارے کے اندرونی ضابطے میں بہتری لائی جائے۔ آڈٹ کے عمل کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی معیار اپنانے کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطر کی بری افواج کے سربراہ کی ملاقات۔ پیشہ ورانہ امور، خطے کی سیکورٹی صورتحال اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال۔ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ معزز مہمان نے خطے میں قیام امن کے حوالے سے پاک فوج کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی فضائی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے، کشمیری صحافیوں کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات دائر۔ پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی پر متعدد صحافیوں کو قتل، 20 کو زخمی، اغوا اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج اگلے مرحلے میں داخل۔ کسانوں کا 4 ریاستوں کے الیکشن میں مودی کے خلاف مہم چلانے کا اعلان۔ مغربی بنگال، آسام، کیرالہ، تامل ناڈو کے اسمبلی انتخابات 2 ماہ بعد شیڈیولڈ ہیں۔ کسانوں کے خلاف مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے جاری، پانی کی سپلائی بند کرنا شروع کر دی۔ فیصل واوڈا کے قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کے باعث انہیں نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن بیان حلفی کے معاملے پر فیصلہ کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔
मुल्क में कोरोना से मजीद 75 अफराद जाँ बहक, 1388 अफराद में वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में वायरस से अब तक 25,63,000 से ज्यादा हलाकतें। पाकिस्तान सुपर लीग कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। बाबर आजम के नाकाबिल शिकस्त 77 रन, मोहम्मद नबी ने 67 रन की शानदार इनिंग्स के लिए मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। Man of the match, Mohammad Nabi, 67 of just 35 balls, wins it. और PSL 6 का 14वां मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान को 177 रन का हदफ, उस्मान खान की 81 रन, शाहनवाज धानी की 3 और इमरान ताहिर की 2 विकेटें। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। That's a good ball. Straight ball. Rizwan asked for it. Again, Yorker. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील जानिएगा एक ब्रेक के बाद। जी बच्चों, कर लिया होमवर्क? जी। जरा मुझे स्कूल की डायरी तो दिखाएं। हल्का बस्ता एक्ट, क्या अब रोजाना सारी किताबें स्कूल नहीं लेके जानी? टीचर ने कहा है कि इस डायरी के मुताबिक किताबें लेके आनी है। वाह भाई, यानी अब हर बस्ता होगा हल्का बस्ता। हल्का बस्ता एक्ट 2020 खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा जहां है अब हर जमात के बस्ते का वजन मुकर्रर। हुकूमत का तालीम दोस्त इक़दाम। हल्का बस्ता कामयाबी का रास्ता। महकमा एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। नाज़रीन, सेनेट की 48 नशस्तों पर इंतखाब का अमल आज मुकम्मल हो गया और तहरीक इंसाफ ऐवान में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई है। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी, जबकि खवातीन की नशिस्त पर PTI की फौजिया अरशद कामयाब हो गई हैं। पोलिंग अमल की तफसील हमें बताएंगे नमूद मुस्लिम। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए इंतखाबात कौमी असम्बली हॉल में हुए, जिसमें जनरल नशिस्त पर अपोजिशन के यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट लेकर, जबकि खवातीन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद कामयाब हुई। जनरल सीट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं, और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। फरजाना साहबा ने 161 लिए हैं, फौजिया साहबा ने 174 वोट दिए हैं, 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं। टोटल कास्टिंग 340 की है। कौमी असम्बली में 341 में से 340 सरकार ने अपने हक के राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपना वोट कास्ट किया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर जेर हिरासत अरकान असम्बली को भी राय दही के इस्तेमाल का हक दिया गया। PDM के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख तमाम वक्त इंतखाबी अमल के दौरान असम्बली हाल में मौजूद रहे। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में गिनती का अमल मुकम्मल किया गया। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो बिलातातुल शाम 5 बजे तक जारी रहा। पोलिंग का अमल पुरअमन और खुशगवार माहौल में हुआ। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, गैर हातमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ की ऐवान बाला में 26 नशिस्तें हो गई हैं। पीपल्स पार्टी 20 नशिस्तों के साथ दूसरे और मुस्लिम लीग नून 18 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेट में 14 अरकान हो गए हैं। ऐवान बाला में जमीयत उलमा इस्लाम के 4, MKM के 3, BNP मैंगल के 2, अवामी नेशनल पार्टी के 2, नेशनल पार्टी के 2, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 2 अरकान हैं। GDA, मुस्लिम लीग काफ और जमात इस्लामी का ऐवान में एक सेनेटर है। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों ने सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह कामयाबी हासिल कर ली है।
जनरल नशस्तों पर PTI के शिबली फराज, मोहसिन अजीज, लियाकत रकई, जीशान खानजादा और फैसल सलीम, जबकि अपोजिशन के हिदायतुल्लाह और मौलाना अताउर रहमान कामयाब हो गए हैं। खवातीन की नशस्तों पर डॉक्टर सानिया निस्तर और फलकनाज सेनेटर्स बन गई हैं। टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर दोस्त मोहम्मद और हुमायूं मोहम्मद, जबकि अकलीती नशस्त पर गुरदेव सिंह ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इंतखाबी अमल की तफसील जानते हैं मोहम्मद शाहिद से। सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया था। सुबह इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने रिटर्निंग अफसर के फराइज सर अंजाम दिए। ऐवान के तमाम 145 अरकान ने वोट का हक इस्तेमाल किया। मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद भी सुबह असेंबली के अहाते में मौजूद अरकान को वोट डालने की इजाजत दी गई। खैबर पख्तूनख्वा से 7 जनरल नशस्तों के लिए 9 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। खवातीन की 2 नशस्तों के लिए 4, टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तों के लिए 3, जबकि अकलियती 1 नशस्त पर 4 उम्मीदवार मैदान में थे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 7 जनरल नशस्तों पर PTI के सैयद शिबली फराज, मोहसिन अजीज, लियाकत रकई, टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तों पर PTI की दोस्त मोहम्मद खान महसूद और मोहम्मद हुमायूं ने कामयाबी हासिल की। खवातीन की 2 नशस्तों पर PTI की सानिया निस्तर और फलकनाज, जबकि अकलियत की वाहिद नशस्त पर PTI ही के गुरदीप सिंह कामयाब करार पाए। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। और बलूचिस्तान से ऐवान बाला के 12 अरकान मुंतखब हुए हैं। हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सूबे से 6 नशस्तों पर कामयाबी मिली है। मजीद तफसील जानेंगे वकार अहमद से। बलूचिस्तान से सेनेट की 7 जनरल नशस्तों पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 टिकट होल्डर्स प्रिंस आगा उमर अहमद जई, मीर सरफराज बुख्ती और मंजूर काकड़ कामयाब हुए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से कासिम रोंझो, जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अवामी नेशनल पार्टी से अरबाब उमर फारूक कासी और अब्दुल कादिर आजाद हैसियत में जनरल नशस्तों पर कामयाब करार पाए। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर JUI के एडवोकेट कामरान मुर्तजा और BAP के सईद हाशमी कामयाब हुए। खवातीन की 2 जनरल नशस्तों पर BAP के समीना जैदी और नसीमा एहसान कामयाब हुई। BAP के दनेश कुमार अकलियती नशस्त पर नए सेनेटर मुंतखब हुए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद राजिक ने काउंटिंग के मरहले के बाद नताइज का ऐलान किया। बलूचिस्तान से 12 नए सेनेटर्स के इंतखाब के लिए बलूचिस्तान असेंबली के 65 अरकान ने वोट डाले। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। और अब सिंध का रुख कर रहे हैं, जहां मुंतखब होने वाले सेनेट के 11 अरकान का ऐलान कर दिया गया है। तफसील जानते हैं नौरीन आसिफ से। सिंध में सेनेट के इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सिंध की 7 जनरल नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान 22, सलीम मानवीवाला 20, शहादत अवान 19, जाम मेहताब डहर 19, ताज हैदर 20 वोट लेकर कामयाब हुए। MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी 22 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा 20 वोट लेकर कामयाब हुए। जनरल नशस्तों पर 161 वोट कास्ट हुए, जबकि 6 वोट मुस्तरद हुए। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों के लिए 164 वोट कास्ट हुए और 3 वोट मुस्तरद हुए। टेक्नोक्रेट की गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फारूक H नाइक 61 और PTI के सैफुल्ला अब्रो 57 वोट लेकर कामयाब हुए। खवातीन की 2 नशस्तों पर गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पलवशा जई खान 60 वोट और MQM पाकिस्तान की खालदा अतीब 57 वोट लेकर कामयाब हुई। खवातीन की नशस्तों पर 4 वोट मुस्तरद हुए। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। ऐवान बाला के अरकान के इंतखाब के लिए सिंध असेंबली में पोलिंग हुई है। इस इंतखाबी अमल के बारे में आपको दिखाएंगे जमीर अब्बास की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में सेनेट की 11 नशस्तों के लिए राय शुमारी हुई। असेंबली अरकान ने 7 जनरल नशस्तों, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की मखसूस नशस्तों के लिए खुफिया राय शुमारी की। राय शुमारी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। एक रुकन असेंबली MMA के अब्दुल रशीद ने वोट नहीं डाला, जिसके बायस 168 में से 167 अरकान असेंबली ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सिंध में 17 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। जनरल नशस्त के लिए कुल 10 उम्मीदवार थे, जिनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7, PTI, MQM पाकिस्तान और GDA के एक उम्मीदवार मैदान में थे। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्त के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 2 पीपल्स पार्टी, 1 PTI और 1 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शामिल थे, जबकि ख्वातीन की 2 नशस्त के लिए 2 पीपल्स पार्टी और 1 MQM पाकिस्तान की उम्मीदवार शामिल थीं। जमीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। अब कुछ पंजाब की बात करते हैं, जहां 11 सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हो गए हैं। तफसील जानते हैं नवीद हयात से।
पंजाब में सेनेट इंतखाबात की सूरत हाल दूसरे सूबों से यकसर मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन पंजाब में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद और पीटीआई की नीलम इरशाद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन से बाकी तमाम उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद बाकी उम्मीदवारों का कोई हरीफ उम्मीदवार सामने नहीं आ सका, जिसके बाद पंजाब से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह सरवर खान नियाजी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास पप्पी, मुस्लिम लीग नून के इरफान सदीकी, साजिद मीर, अफनानुल्लाह खान, जबकि काफ लीग के कामल अली आका शामिल हैं। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर और मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारर, जबकि खवातीन की 2 महसूस नशिस्तों पर पीटीआई की जरका तमूर और मुस्लिम लीग नून की सादिया खाकान अब्बासी भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी, मजीद अहम खबरें देखिएगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बीओपी तकवा मेहरबान सर्टिफिकेट 55 साल से जायद उम्र के पाकिस्तानी शहरी, खुसूसी अफराद, बेवाओं और यतीमों के लिए 1 ता 50 लाख रुपए तक सरमायाकारी की हद और बेहतरीन माहाना मुनाफा। बीओपी तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन एक ईमान। जी बच्चों, कर लिया होमवर्क? जी। जरा मुझे स्कूल की डायरी तो दिखाएं। हल्का बस्ता एक्ट, क्या अब रोजाना सारी किताबें स्कूल नहीं लेके जानी? टीचर ने कहा है कि इस डायरी के मुताबिक किताबें लेके आनी है। वाह भाई, यानी अब हर बस्ता होगा हल्का बस्ता। हल्का बस्ता एक्ट 2020 खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा, जहां है अब हर जमात के बस्ते का वजन मुकर्रर। हुकूमत का तालीम दोस्त इक़दाम। हल्का बस्ता कामयाबी का रास्ता। महकमा एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। ब्रेक के बाद खबर आप तक पहुंचाएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क को मफलूज करने वाले निज़ाम को तब्दील करेंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर होने वाली सेनेट इलेक्शन के नतीजे ने हमारे खदशात को दुरुस्त साबित किया। ये जो इस्लामाबाद का रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल उसी मौकफ की तायीद है जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहते रहते थे। एक सीट की बात नहीं है, इनकी कोशिश यही है कि ये साबित कर सके कि पुराना निजाम जो कि चोरी, डाके और इस मुल्क के वसाइल को लूटने पर वो लोग, वो तबका, वो सियासी सोच जो कि हमेशा इसी तौर तरीकों से इक्तदार में आई, इक्तदार में आके इदारों को मफलूज किया, इदारों पे अपने बंदे बैठाए और उसके जरिए अपनी करप्शन को ये कायम दायम रखते हुए आगे ले गए। नतीजतन पाकिस्तान बदकिस्मती से कंगाल हो गया और ये लोग, इनकी अरबों की जायदादें बैरून मुल्क चली गईं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि धौंस, धांधली और पैसे के जरिए इलेक्शन खरीदने वाले लोग लूटमार के निजाम को बचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क में मेरिट और शफाफियत के लिए जिदोजहद जारी रखेगी। इमरान खान ही वाहिद हल है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। ये दो उन नजरियों की जंग है, एक वो लोग जो कि सयाह कुव्वतें हैं, जो कि पीडीएम की सूरत में आपको नजर आती हैं, जिन्होंने के एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, अपने खजानों के लूटे हुए माल के खजाने खोल दिए हैं कि वो किसी न किसी तरीके से लोगों को खरीद सकें। ये जमीरों के सौदागर हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, क्या वजह है कि पूरे के पूरे मेंबरान हमारी पार्टी के इलेक्ट हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि अवाम खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं।
और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि वोट खरीद कर जश्न मनाने वालों की जब तहकीकात होगी और कौम के सामने असल हकायक आएंगे तो इनकी हालत देखने वाली होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम की हिमायत से करप्शन माफिया के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद में जरूर कामयाब होंगे। आपकी क्या थी पार्टी पोजीशन, कहां से आए वोट, कैसे पड़े आपको वोट, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। इमरान खान साहब इस कौम के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, इस कौम के लिए, इस गरीब कौम के लिए, गरीब आवाम के लिए। इमरान खान साहब सियासत में आए थे कि करप्शन का इस मुल्क से खात्मा करना है, इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है, और इंशाअल्लाह इमरान खान अपने मिशन पर गामजन रहेंगे। अल्लाह ताला उनके शामिल हाल रहेगा, ये कौम उनके साथ खड़ी है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब पता चलेगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, ये चेहरे बेनकाब होंगे, तो उसमें जीत इंशाअल्लाह पाकिस्तान की और इमरान खान की है। वफाकी वज़ीर मुवासलात मुराद सईद ने कहा है कि गुज़श्ता रोज की ऑडियो और वीडियो सामने आने से PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद सईद ने कहा कि कल गिलानी के बेटे की वीडियो देखकर सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। ऑडियो कॉल में सिंध के सूबाई वजीर सेनेट वोटों के बदले तरक्याती फंड देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने बदउनवानी पर अपने 20 अरकान सूबाई असम्बली को पार्टी से निकाला। बाप उम्मीदवार बेटा खरीदार बना हुआ है, इस सियासत को सिर्फ कारोबार समझते हैं। हाल ही दिनों में आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओपन बैलेट की भी बात की, हमने आईनी तरमीम की भी कोशिश की, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। ये माजी में चार्टर ऑफ डकैती जो इनका था उसमें भी इन्होंने ओपन बैलेट की बात की थी। पिछली हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई थी और उन्होंने भी हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे की बात की थी। जो IGI बन के पैसे लेके वज़ीर-ए-आज़म बने हो, जो पर्ची की बुनियाद पे एक पार्टी के हाथाती चेयरमैन बनते हो, वो कभी भी ओपन बैलेट की तरफ नहीं जाएंगे। उधर कोयटा में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान से वाज़ेह कामयाबी पर इत्तेहादियों के मशकूर हैं। हुकूमती इत्तेहादी अपना चेयरमैन सेनेट लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान में हमारी जितनी भी कोलिशन हुकूमत है, जिसमें जमहूरी वतन पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमारे साथ BNP अवामी है, हमारे साथ जनाब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे, हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी भी हमारे साथ मौजूद। हम सब ने मुश्तरका तौर पे इस पूरे सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। सब मिलके यकीनी तौर पे इस्लामाबाद में एक ऐसा फैसला करेंगे कि हमारा टारगेट ये होगा कि हुकूमती जितने भी कोलिशन है वो अपनी भरपूर कोशिश करके चेयरमैन भी लाएं और डिप्टी चेयरमैन भी लाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर रही है और अवाम भी सेनेट इंतखाबात पर गहरी नजर रखे हुए थे। सेनेट इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद के अवाम क्या सोचते हैं, इस बारे में हमें रिपोर्ट करेंगे रिजवान आरिफ। यूं तो सेनेट इंतखाबात पाकिस्तान भर में अवाम की गुफ्तगू का मौजू थे, लेकिन इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख की सेनेट नशिस्त अवामी दिलचस्पी का महवर रही। इंतखाबात जो है वो जमहूरी अमल है और ये एक शफाफ अंदाज में होने चाहिए, जो भी आए बस वो अवाम के मसाइल को हल करे। पूरी कौम की उम्मीद है, वो मेरी उम्मीद भी है कि यहाँ पे कानून साजी होगी, मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगे और यहाँ पे अवाम की बात होगी। सेनेट इंतखाबात को इस्लामाबाद के अवाम ने जमहूरी तसलसल के लिए अहम करार दिया। हमारे मुल्क की तरक्की भी जमहूरियत के साथ साथ है। पाकिस्तान की अवाम है वो तो जमहूरियत को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में भी सेनेट के इंतखाबात पर कड़ी नजर रखे हुए थे। शहरियों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नौमुंतखब सेनेटर्स ऐवान बाला में अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। अभी बात करेंगे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की, जिनका कहना है कि बदउनवानी के खात्मे और शफाफियत के लिए ऑडिट के अमल को कंप्यूटराइज्ड करने की जरूरत है। उन्होंने ये बात ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जावेद जहांगीर से गुफ्तगू करते हुए कही और उन्होंने सदर ममलिकत को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत ने कहा कि इदारे की कारकर्दगी में इजाफे के लिए DAGP के अफसरान की बेहतर तरबियत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेहतर मालियाती इंतजाम और खिदमात की फराहमी के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के इदारे को जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। सदर ममलिकत ने कहा कि पेशा वाराना महारत और बेहतर गवर्नेंस के लिए इदारे के अंदरूनी ज़ाब्ते में बेहतरी लाई जाए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर की बड़ी फौज के सरबराह मेजर जनरल सईद हुसैन मोहम्मद अल खारेन ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में पेशा वाराना उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। मुआज़्ज़ज़ मेहमान ने खत्ते में क़याम अमन के हवाले से पाक फौज की मुखलिस कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान दहाइयों से बरादराना ताल्लुकात हैं जो बाहमी फवाइद में तब्दील हो रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुआज़्ज़ज़ मेहमान के नेक जज्बात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी अपने आज़मूदा दोस्त कतर के साथ ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखती है। कतर की बरी फौज के कमांडर को GHQ आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कतर की बरी अफवाज के सरबराह ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल भी चढ़ाए। अब आपको बताएं कि कौम पाकिस्तान के हवाले से ISPR ने नया प्रोमो जारी कर दिया है। नाज़रीन, इस साल का मौजू है एक है कौम एक मंजिल। आइए आपसे प्रोमो शेयर करते हैं। खबरनामे में अब बात करेंगे भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि नरेंद्र मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी के तहत कश्मीरी सहाफियों के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमात दायर किए जा रहे हैं ताकि काबिज भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरियों के खिलाफ जारी जंगी जराइम से आलमी बरादरी को बेखबर रखा जा सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि 1989 से अब तक मकबूजा इलाके में अपने पेशा वाराना फराइज की अदायगी पर मुतादिद सहाफियों को कत्ल, 20 को जख्मी, अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा इलाके का बदतरीन फौजी मुहासरा किए जाने के बाद से सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयों में कई गुना इजाफा हुआ। जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शबीर अहमद डार ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि कश्मीरी भारतीय फौजियों की जानिब से कत्लेआम, आबरूरेजी, अमलाक की तबाही और इबादतगाहों की बेहुरमती के वाकयात को हरगिज फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वह जम्मू कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में तहरीक हुर्रियत के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई की जम्मू खिते की उधमपुर जेल में गिरती सेहत पर सख्त तशवीश का इजहार किया। जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर में एक इजलास में मीर वाइज उमर फारूक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इजलास के शुरका ने कहा कि मीर वाइज उमर फारूक के घर में मुसलसल नजरबंदी की वजह से श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद का मेंबर गुज़श्ता 82 जुमा से खामोश है। मीर वाइज उमर फारूक मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरपरस्त भी हैं। साबिक कठपुतली वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद की तरफ से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने पर उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस के कारकुनों ने जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी की क़यादत में जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान उनका पुतला जलाया। भारतीय फौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप भगत सिंह ने श्रीनगर में फौज के एक डिपो में अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस ताज़ा वाक़े से जनवरी 2007 से मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़कर 491 हो गई है। एक और वाक़े में राजौरी में फौजी कैंप में एक भारतीय फौजी की गोलियों से और आज जो हमने इस्लामाबाद में नतीजा देखा उसने हमारे बयानिया को तक़वियत दी। हमारा बयानिया पहले दिन से यही था कि हमें खदशा है कि इस सेनेट इलेक्शन में माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए मंडी लगेगी, खरीदो फरोख्त होगी और ज़मीरों के सौदागर ज़मीरों की खरीदारी करेंगे जमहूरियत का नाम लेकर। आज आपने देखा कि कौमी असेंबली में हमारे जो 2 सीटें थी, एक सीट पर हमारी जो खातून मेंबर हैं वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से यानी कि 174 वोट लेकर कामयाब होती हैं, क्योंकि वहां उन्हें खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी न थी।
लेकिन जो यूसुफ रजा गिलानी की सीट थी, उस सीट पर उनको पहले दिन से ये इशारे हमें आ रहे थे कि उन्हें ना चाहते हुए भी खड़ा किया जा रहा है, और इस दिलासे पर कि आप ना उम्मीद ना हो, आपको जिताया जाएगा और आपकी जीत में हर हरबा इस्तेमाल होगा। और आज कौम ने देखा कि वो हरबा इस्तेमाल हुआ, और जो इमरान खान का बयानिया था, आज उस पर एक मोहर सब्त कर दी गई। और ये बयानिया आज का नहीं है, ये माजी में भी ऐसा होता रहा। और पिछले सेनेट के इलेक्शन में जब खैबर पख्तूनख्वा में जमीरों को खरीदा गया या कोशिश की गई, तो हमने फिल फॉर एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, और 20 के लगभग मेंबरान सूबाई असेंबली को पार्टी से रुखसत किया। उसी बयानिए को बुनियाद बनाते हुए और जो आज जमहूरियत के अलंबरदार ठहरे, उनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले को सामने रखते हुए हमने दावत दी कि आइए एक ओपन बैलेट की तरफ जाते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए खरीदो फरोख्त की लानत से हमें छुटकारा मिल जाए। आपने देखा कि उनका कहना और उनके करने में तजाद वाज़ेह हो गया। हमने आईनी तरमीम की कोशिश की और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम असेंबली में लेकर गए। आपने जो वहां की जमातें हैं, 2 बड़ी जमातें, उनका रवैया आपने देखा कि ना उन्होंने डिबेट को होने दिया और ना ही अपने वादे के मुताबिक वो ओपन बैलेट के ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने उस लेजिस्लेशन पर वोटिंग होने दी या उसका हिस्सा बने। अबहम को दूर करने के लिए कि आइन इसके बारे में क्या राय रखता है, हम सुप्रीम कोर्ट गए और एक रेफरेंस फाइल किया, रहनुमाई हासिल करने के लिए आला अदलिया से, क्योंकि हम समझते हैं कि आइन की तशरीह का हक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ हमारा सुनने के बाद अपना फैसला दिया और हमने उस फैसले को खुले दिल से कबूल किया, उसका एहतराम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के ऐन मुताबिक उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आगाह किया कि शफाफ इलेक्शन करवाना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। और मुझे आज बसद एहतराम ये कहने की इजाजत दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस शफाफियत को इंश्योर करने में नाकाम दिखाई दिया। और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो हमारे खदशात थे, वो एक वीडियो जो सामने आई और जो ऑडियो सामने आई, उसके बारे में इलेक्शन से एक रात पहले फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की और उनसे रजू करने की कोशिश की, लेकिन हैरान हुए कि वहां एक सन्नाटा था। अगले दिन इंतखाबात होने हैं, इलेक्शन कमीशन को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था और इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है उसका इजहार मीडिया के सामने कर दिया। अब उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो शफाफ इंतखाबात को इंश्योर करें। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस मयार पे उनको उतरना चाहिए था, आज हमें उस मयार पे वो उतरे दिखाई नहीं दिए। अली हैदर गिलानी
ان کا چہرہ، ان کی آواز اور ان کی حرکتیں قوم کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں. اور جس قسم کی سیاست پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، اور ہم نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے ایک شفاف انتخابات کو انشور کریں. جواب آیا کہ ہاں کریں گے، لیکن اگلے انتخابات سے اس انتخاب میں وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. اگر آپ دیکھیں تو کوئی لاکھوں بیلٹ پیپر کا بندوبست نہیں کرنا تھا، چند 100 بیلٹ پیپر درکار تھے، اور یہ عین ممکن تھا، لیکن ان سے نہ ہو سکا. آج قوم کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جو عمران خان نے شروع کی تھی، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. عمران خان نے سیاسی کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کی. ہر میدان پر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک احتساب کے عمل کو، خودداری کو، اور ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی، اور کرتے رہیں گے. اس لڑائی میں قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں اس ووٹر کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں جس نے عمران خان کا یا اس کے نظریے کا ساتھ دیا اور جس نے بلے پہ مہر لگائی، یہ لڑائی جاری ہے اور یہ لڑائی جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ حق اور باطل کی لڑائی جو ہے یہ ہم لڑتے رہیں گے. وقتی طور پر یزیدی قوتوں کو تو ایک کامیابیاں دکھائی دے سکتی ہیں، لیکن آخر کار فتح حق اور سچ کی ہوگی اور ضمیر کے سوداگروں کو ناکامی ہوگی. میری نظر میں آج کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے اور ایک افسوسناک دن ہے. وہ جو جمہوریت کے علمبردار تھے، آج انہوں نے جمہوری قدروں کو روندا ہے، جمہوری قدروں کو قتل کیا ہے، ان کی نفی کی ہے اور کھلے عام کی ہے اور قوم کے سامنے ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور واضح ہو جائے کون کہاں کھڑا ہے. جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرف دکھائی دیں گے، اور جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نون یا پیپلز پارٹی کا یا ان کے حلیفوں کا نظریہ پسند آ گیا، تو پھر انہیں یہ پورا حق پہنچتا ہے کہ برملا ان کی صفوں میں وہ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم انشاءاللہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے نظریے پر قائم ہیں. تحریک انصاف کا کارکن جو میری آواز پورے پاکستان میں سن رہا ہے، اسے اعتماد ہونا چاہیے کہ اس لڑائی میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے. یہ یکجا ہو گئے، ان میں کوئی نظریاتی مطابقت نہیں ہے. یہ مقاصد کی سیاست کرتے ہیں، یہ بچاؤ کی سیاست کرتے ہیں، یہ فرار کی سیاست کرتے ہیں، اور اس سیاست کو وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اس سیاست کو انشاءاللہ دفن کر کے دم لیں گے. شکریہ.
میرا سوال آپ سے ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ خریدے یا بیچے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آپ کے ارکان نے کھل کر اظہار ناراضگی بھی کیا، پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم کو ملاقاتیں بھی کرنا پڑی۔ عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی، اور ان کے جو کام ہے ظاہر آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاسی نظام میں ایم ایل اے ایم پی ایس کے کام ہوتے ہیں، اور وہ ایک عام تاثر ہے کہ آپ کی حکومت میں وہ جو وزراء ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، وہ بات نہیں سنتے۔ آپ کا سوال سمجھ گیا۔ آپ کے ارکان جو ناراض تھے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو کھلے اظہار کا موقع دیتی ہے۔ وزیر اعظم میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ممبران کی ہمہ قسم کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور جو ان کی جائز بات ہے وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کور انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے وہاں وہ ڈٹ بھی جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے بات کی، انہوں نے لوگوں کو حوصلہ بھی دیا، لوگوں کو بتایا بھی صحیح، لوگوں کو سمجھایا بھی صحیح، اور لوگوں نے ان کی بات کی تائید کی، اور لوگوں نے منون ان کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھیے یہ ایک جمہوری عمل ہے، اور اس عمل میں سے آپ گزرتے ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ ناراض تھے، دیکھیے تو ناراض اگر تھے تو پھر کھل کے چلے جاتے، جیسے دو ممبران نے سندھ میں کہا کہ ہم ناراض ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ووٹ کریں گے، انہوں نے اظہار کر دیا، ہمیں اس کا افسوس ہوا، لیکن یہ ان کا حق ہے اور ہم نے اس حق کو تسلیم کیا۔ اگر ان میں پھر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہاں میں گیلانی کو یا نوٹ کو ووٹ دے رہا ہوں۔ ایک تو نظام کے سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے 32-33 سال ہو گئے ہیں کوچنگ کرتے، پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ پولیٹیکل انمیچورٹی فرام دی گورنمنٹ سائڈ دکھائی دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا، عملی طور پر وہ اس کے اگینسٹ ثابت ہوا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اپنی سطحوں میں اپنی حکمت عملی کا جائزہ لینا چاہیے، اور کیا یہ نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر کو تمام حوالوں سے غلط بریف کیا گیا؟ سر دیکھیں، ایک ہے کامنٹ، اس کامنٹ کا احترام ہم کرتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے آئین کی تشریح فرمائی اور کہا کہ ان کی رائے میں، جس کا ہم نے احترام کیا، یہ ایک آئینی عمل ہے اور سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے، ہم نے تسلیم کیا، ٹھیک، لیکن انہوں نے بات ادھوری نہ کیجیے نا، بات مکمل کیجیے، اور بات یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ شفافیت، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایبسولوٹ سیکریسی کا کوئی کانسیپٹ ان کی نظر میں نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس پوری چیز کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری شاید پوری طرح نہیں نبھا سکے۔ اس میں میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ ہم گئے الیکشن کمیشن، ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور الیکشن کمیشن کے نمائندگان سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ جو ایک حکم ہے کہ شفافیت کی جائے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بیلٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے کل کو اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے کسی کو تو وہ اس کے بارے میں تحقیق کر سکے۔ اب آپ نے آج یہ دیکھا کہ اگر شکایت پیدا ہے کہ اور نظر آ رہا ہے 174 ووٹ ملتے ہیں ہماری خاتون کی جو کینڈیڈیٹ ہے فوزیہ صاحبہ، اور 164 ووٹ ملتے ہیں وزیر اعظم کے یہ جو اس سلسلے میں جو حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہے۔ تو اس سے نظر آ گیا کہ الیکشن کمیشن نے جو شفافیت تھی وہ اس سے نظر نہیں، میں آپ کی بات کو دیکھیے، اگر لوگ ناراض تھے تو ناراضگی نکلے اپنا خاتون کے ووٹ پر اس کا نظر کیوں نہیں آئی؟ میں ناراض ہوں تو میں ایک ووٹ دیتا ہوں تو دوسرا کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ میری ناراضگی کیسی ہے؟ ناراضگی ہے تو پھر مکمل ہونی چاہیے نا، ناراضگی نہیں ہے بھائی جان، یہ ہے یہ
एक वोट के लिए पैसा मिला था और दूसरे वोट के लिए नहीं मिला था, सीधी सी बात। आपके पास 180 वोट थे, 174 पड़े फौजिया साहबा को, 164 पड़े वो, तो वोट तो वहां से भी शेयर हुए 174। और नंबर 2 सर रिजेक्ट भी तो है ना भैया। नंबर 2 ये कहिए कि आपने कहा कि बिल्कुल जमहूरी रवैया ये है कि दोबारा इस बात को बोल देंगे अवाम से, तो बता सकते हैं कब तक इस प्रोसेस में आप जाएंगे? देखिए ये तो एक मैं इसका जवाब दे दूं। एक मिनट बाद 3 साल पहले के इलेक्शन हो और केपी में आपके 20 अफराद की मामला हो, आज भी अगर देखा जाए कि जो रात वीडियो आई है और सिंध का भी मामला देखा जाए, आप लोग तो नून से शीन ने कागज से ये क्या निकल है? देखिए बात ये है नून से पैसा निकलना है। अब देखिए मैं आपका सवाल मैं कह रहा था कि आप उसको एतमाद आपका सवाल देखिए वो तो एक प्रोसीजर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। हमने अपनी जिम्मेदारी का और जो एक मॉरली करेक्ट पोजीशन है वो ले ली है। वजीर आजम ने बिल्कुल कहा है कि मैं वजीर आजम तब हूं जब मुझे ऐवान का एतमाद हासिल है। ये बड़ी वाज़ेह सी बात है और उसके लिए मैं इस ऐवान को एक मर्तबा फिर मौका देता हूं अपनी राय का इजहार करने के लिए। ठीक, अब वो हम देख लेंगे क्या प्रोसीजर है, जो आईनी तरीका है, जो ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते को फॉलो किया जाएगा। और टाइमिंग की जहां तक आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो घंटों का भी नहीं इंतजार किया, उन्होंने तो आज ही इसलिए ऐलान करवाया है। जफर आशमी साहब दुनिया से जिस तरह आप आज यहाँ कैबिनेट बैठी हुई है और आप लोगों को देख के सब आ रहा है, तो पहले आप लोग बेशतर दिल्ली इलेक्शन हार गए, फिर आज आपके घर से आपका मुखालिफ आपके वोट चुरा के ले गया और आप इल्जाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। इल्जाम नहीं लगा रहे ना। इल्जाम देखिए, हम कह रहे हैं कि जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन कराने की, उस आईनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा सके, इसलिए कि वीडियोस और ऑडियो जो टेप्स हैं वो सामने आ गई, जिससे जाहिर हो गया कि खरीदो फरोख्त हो रही है, बोली लग रही है, लोगों को खरीदा जा रहा है, बड़ा वाज़ेह हो गया और इलेक्शन से पहले हो गया। ये सवाल होता है तहरीक के हिसाब के साथ क्यों होता है कि इनके लोगों को लोग तहरीक से ले जाते हैं? ये बताइएगा, तो सवाल मेरा मुकम्मल नहीं हुआ था। जब मैं एक तो आपने कह दिया कि इतमाद का वोट देगा, इसके अलावा जिन्होंने अपना वोट भेजा है उनके हवाले से पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनकी शनाख्त कर दी गई है? इस्लामाबाद में एक यहाँ पे एक तासुर ये भी है कि आपकी हुकूमत के सिलेक्टर्स का तो इल्जाम लगता ही है। ये भी कहा जा रहा है कि सिलेक्टर्स ने अब आप पर से हाथ उठा लिया है और आपको ये छोड़ दिया, वो न्यूट्रल हो गए और आपको ये कहा गया कि अब आप अपनी लड़ाई खुद करें। तो क्या यही बात है कि सिलेक्टर्स ने हाथ उठा लिया, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन? ये जवाब देते थे, मैं वजाहत कर दूं। दोनों आपकी चीजों को जवाब दे दूं। पहली बात जो आप पूछ रहे थे ना सवाल के सिर्फ तहरीक इंसाफ की क्यों बिकते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत मेरे भाई दो धारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक तरफ खड़े हुए इमरान खान जो कह रहे हैं कि मैंने इस कौम को एक अजीम कौम बनाना है कायदे आजम के नजरिए के मुताबिक, अल्लामा इकबाल के साथ के मुताबिक। दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने पैसे से सियासत की, सियासत में आके मजीद पैसा कमाया और उस पैसे से अब वो अपनी सियासत का दिफा करते हैं। तो भाई खरीदने वाले सिर्फ एक ही साइड पे हैं, तो उस साइड पे हम खरीदने की कोशिश करते ही नहीं है। जहां तक आपका दूसरा क्या पहलू था, एक तो आप एक्शन क्या लेंगे और दूसरा ये सिलेक्टर्स वाला भी ये जवाब दे दें कि सिलेक्टर्स वाला अगर आप आज का मजमूई इलेक्शन देख लें तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर और उसके इत्तेहादियों ने जितनी सीटें बननी चाहिए थी उतनी ली हैं। अगर आप पूरी सीटें देखें तो हमने पूरी सीटें ली हैं। तो जहां जिस सीट पे पैसा लगा है वो सीट पे आपको पैसे का असर नजर आ गया। बाकी पार्टी एक्शन का वाइस चेयरमैन साहब आप देखें, हाँ, हम बिल्कुल देखिए वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ गया कि हमारे किसी मेंबर ने ये किया है, तो पहले भी एक्शन लिया था और अब भी ले सकते हैं। प्लीज देखिए आर्टिकल 2 जो शौकत साहब आगे से कह रहे थे ना, जो आपने कहा कि आपको तर्स हम पे आ रहा है, आपको तर्स पाकिस्तान के लोगों पे आना चाहिए, इस निजाम पे आना चाहिए कि क्या निजाम है। आप अरबों रुपए कमाएं
उसके बाद अरबों रुपए इलेक्शन पे लगाएं और इलेक्शन जीत जाएं। ये निजाम है इस वक्त पाकिस्तान का। उसके बाद इख्तिदार में फिर पैसे कमाएं और फिर आप इलेक्शन जाएं। ये निजाम है जिसके खिलाफ, जैसे असद उमर साहब ने कहा, जद्दोजहद कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा आप उनके खिलाफ क्या इक़दाम कर रहे हैं, यही तो रोना है। आप इलेक्शन कमीशन को 3 दिन से हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है टेक्नोलॉजी का यूज करें, उसको ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स होने चाहिए, पता चले किसने कहां पे वोट दिए। ये थोड़ा ही कि कल आपने गया बंदे ने बैग दिए, उसके जाके वोट दिए, जमीर का सौदा। और आप जो है इतने बाज़मीर लोग हैं कि निचली जो खातून की सीट है उसके ऊपर पीटीआई को वोट दे रहे हैं, ऊपर वाली सीट के ऊपर जो है वो दूसरी को वोट दे रहे हैं। देखिए, फवाद की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक और मिसाल देता हूं। पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक सीटें बनती हैं। इस असूल को तस्लीम करते हुए यही पीपल्स पार्टी और यही नून लीग पंजाब में इत्तफाक कर लेती है कि हमारी इतनी सीटें बनती हैं, आपकी इतनी बनती हैं, तो आइए हम बैठकर उसके मुताबिक फैसला कर लेते हैं, और हो गया, आपके सामने है। लेकिन उसी मंतक को और उसी असूल को यहां नहीं अपनाते। क्यों नहीं अपनाते? क्यों नहीं अपनाते? इसलिए नहीं अपनाते कि उनकी नीयत में खोट वाज़े थी। उन्होंने ये कारोबार करना था, वो धंधे के आदी हैं और वो धंधा उन्होंने करना था। इसलिए वो असूल जो पंजाब पे लागू हो सका वो मरकज पे लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। और मरकज में भी खातून की सीट पर वो खरीदो फरोख्त के लिए तैयार नहीं थे, और पूरा जो उनका फोकस था वो जो एक हफीज शेख की सीट है उस पर था। जब ये पहली वाली वीडियो आई थी जिसमें आपने लोगों को निकाला था, उस वक्त आपने ये कहा था कि हमें पता है कि कौन लोग हैं जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं और इस इलेक्शन में भी वो करेंगे। आप लोगों को उस वक्त भी एक्सपोज नहीं किया वो कौन लोग थे, कौन सा पैसा कहाँ था। दूसरी बात ये क्या इस इलेक्शन को आप चैलेंज करेंगे। तीसरी बात ये कि कमीशन कहती है कि अभी आपने वीडियो लीक जो आई वो ट्विस्टिंग ऑपरेशन था और कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज कौन भेजता है कि कोई एजेंसी होगी जिन्होंने आपको एक दिया होगा, तो क्या आप लोगों ने उनको भी इस्तेमाल किया? नहीं, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन था। नहीं, वो ऑपोजिशन कह रही है, तो वो इतने बच्चे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि किससे राब्ता कर रहे हैं और क्या रेट तय कर रहे हैं, और फिर वो बहस व तमीज में कहते नहीं थोड़ा सा पैकेज हो जाएगा, सिंध में आपके काम हो जाएंगे, फलानी चीजें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ा दें, थोड़ा सा कम कर दें, ये सब चीजें आपके सामने हैं। ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। किसको जी? देखिए, हमने जो हम एक पॉलिटिकल जमात है और हमने इसका एक पॉलिटिकल मुकाबला करने का फैसला किया है। हम इसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की आवाम से भी हम मुखातिब हैं और उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि वक्त आ गया है। ये पाकिस्तान की सियासत में डिफाइनिंग मोमेंट है। पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ खड़ा होना है। उन्होंने मुस्तकबिल की सियासत का धारा किस तरफ उसका रुख करना है। उन्होंने उस माजी की खरीदो फरोख्त की सियासत को जारी रखना है, तो ये उनका फैसला है। और क्या उसको दफन करना है, तो फिर आज उन लोगों, उन जमातों को, जिन जमातों ने ये खरीदो फरोख्त की है, उन जमातों का वो कड़ा एहतसाब करें, और उन लोगों का जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है उनका एहतसाब करें। देखिए, गलती तो किसी इंसान से हो सकती है। एक होता है गलती, एक होता है बदनीयती। बदनीयती में और गलती में फर्क आपको करना है, वो तमीज करनी है। उनसे गलती हुई और उन्होंने आके बरमला उसका इजहार किया, छुपाया नहीं, इजहार किया, और एक दरखास्त दी कि मुझे नया बैलेट पेपर इशू किया जाए ताकि मैं उसकी इस्लाह कर सकूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया।
سر یہ بتائیے گا سینٹ الیکشن سارا ایک طرف حفیظ شیخ اور جو گیلانی صاحب کا مقابلہ تھا وہ ایک طرف تھا. سر انہوں نے کوشش کی, انہوں نے پیسہ لگایا, آپ کے بقول آپ نے فرمایا کہ دھندا ہوا, جو بھی ہوا وہ سیٹ لے گئے. اب سر اگلا ٹارگٹ ان کا چیئرمین سینٹ کا ہے, وہ اس پر انہوں نے آج اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے کہ گیلانی کو وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر لائیں گے. آپ لوگ سر یہاں پر کوششیں کرتے رہے, آپ نے الیکشن کمیشن بھی گئے, سپریم کورٹ بھی گئے, وہاں پر پیسہ پھر بھی چلا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, یہ میرے دوست بیٹھے ہیں, میں نے ان سے بھی کہا اور میں نے وزیر اعظم سے بھی کہا کہ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جانتا ہوں, ایک علاقے سے, میں ان کے مزاج کو بھی جانتا ہوں. ان کو واضح معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے, اور اگر وہ امیدوار بنے ہیں تو وہ عددی اکثریت کو سامنے رکھتے ہوئے امیدوار نہیں بنے. انہیں جو عندیہ دیا گیا کہ اس بنیاد پر اور ڈیپ پاکٹس کا جو ان کو علم تھا اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. آپ کے سامنے ہے, آپ ریکارڈ اٹھائیے, فوٹیج اٹھائیے. ملتان میں, ممتاز آباد میں میں نے ایک پریس کانفرنس کی, ریکارڈ کی بات ہے, اور اس کو کوئی الیکشن سے کوئی مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس پہ میں نے کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم سینیٹر بننے کی خواہش رکھ رہے ہیں. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے, اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہو اور پھر آپ سینٹ کے ممبر بن رہے ہو, اور پھر یہ بھی کہا ملتان کے میڈیا نے, آپ پوچھئے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی وہ سینٹ کے بھی امیدوار ہیں اور جس بلبوتے پہ ہیں, اور وہ چیئرمین سینٹ کے بھی امیدوار ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا. تھینک یو. دیکھیں جی, آخری بات یہ ہے کہ جو الیکشن, جو ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا وہ اوپن ہوگا, اور جو بھی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہتا ہے دے, پتہ لگ جائے گا سیدھا کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کے ساتھ. ضمیر کس کا بول رہا تھا اور پیسہ کس کا بول رہا تھا. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کابینہ ارکان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. وزیر اعظم عمران خان ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے. پارٹی مشاورت سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ پریس کانفرنس ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے, جس میں سب سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جب بات کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ آج جو نتیجہ سامنے آیا ہے سینٹ الیکشن میں, اس نے اس بیانیے کو تقویت دی ہے جو پی ٹی آئی کا شروع روز سے رہا ہے. عمران خان کے بیانیے پر مہر ثبت ہوئی ہے, اور اب وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے. یہ اخلاقی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی مشاورت سے کیا ہے. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو ضمیر خریدتے ہیں, ضمیر کو بیچتے ہیں. ضمیر کس نے خریدے, ضمیر کس نے بیچے, کل سامنے آنے والی ویڈیو میں واضح ہو گیا تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا, اور اس کے بعد ہوا کیا, وہ تمام چیزیں سب لوگوں کے سامنے ہیں. یہ آج کہا گیا ہے, اور اس پریس کانفرنس کا جو لب لباب ہے, جو سب سے اہم فیصلہ ہے, وہ یہی ہے کہ عمران خان ایوان میں جائیں گے, اعتماد کا ووٹ لیں گے. ٹیلی فون کی موجد الیگزینڈر گراہم بیل 3 مارچ سن 1847 کو اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں پیدا ہوئے. 3 مارچ سن 1575 کے دن مغل شاہنشاہ اکبر نے ٹوکاروئی جنگ میں بنگال آرمی کو تاریخی شکست دی. 3 مارچ سن 2005 کے دن اسٹیو فاسٹ نے پہلی مرتبہ کہیں بھی رکے بغیر اکیلے اپنے جہاز میں دنیا کے گرد چکر لگایا. انہی کے نام سے مشہور پاکستانی کرکٹ کوچ اور سابق کرکٹر انضمام الحق 3 مارچ سن 1970 کو ملتان میں پیدا ہوئے.